आज के मुख्य वक्ता हमारे प्रिय हमारे एडवाइजर मार्गदर्शक और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी कैबिनेट मंत्री भारत सरकार और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोर्ड WHO का मैं IVF के आज इस वेबिनार में सबकी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। Ashok Agarwal ji, wish you many happy returns of the day. Thank you. Thanks a lot. Good afternoon, sisters and brothers of IVF community. I am very happy to join in this webinar meeting to welcome our Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harshavardhan ji, who is the most lovable and respectable person, and we are proud that he has born in our Vaishya community. In recognition of his dedicated services and his exemplary role as a Union Health Minister played in the global fight against COVID-19, he has been elected as the chairman of the Supreme Court World Health Organization Executive Board for the year 2021. It is not only a significant recognition to India, but also golden feather in the cap of our Vaishya community. Being a Vaishya, he is taking care of all the communities and is committed to do relentlessly and offers his services and uplifts the backward section of our community as well. He is an honest, dedicated and has a noble and charitable mind which is well widely acclaimed by people associated with him. Not only this, he is a teetotaler, totally vegetarian, non-alcoholic, non-smoking. So his best habits he is having, and it is our favorite fortune, and we are all privileged to have him here to address us in a pandemic and Atma Jinabad Bharat. Sri Ramdas Agarwal ji is founder president of IVF, has started doing government services all around, addressing in various fields like educational, boosting education moral to civil services, as well as addressing community problems for which he is globally acclaimed. And Dr. Sri Ramdas Agarwal ji, Sri Ashok Agarwal ji has taken over the reins and is dedicating his devoted services to the community and relentlessly putting effort to achieve the dreams of our great visionary leader, late Sri Ramdas Agarwal ji. In a landmark move, the Union government has introduced a 10% reservation in jobs and higher education for economically backward sections in this general category, but unfortunately, still state governments have not been successfully in acting on this project. And I request that the said matter may be seriously pursued. We need to take care of ourselves. Most of the Vaishya community, comprised of traders, this pandemic corona has affected their businesses on large scale. The recovery rate in our community from this pandemic is very less compared to the rest of the community because of low immunity in our community. I request Dr. Harshavardhan ji to address this pathetic situation also.
a major portion of our community is struggling to lead their life without help from the government. It will be difficult to uplift the weaker sections of our community. In South India, Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka have been successfully creating Vaishya Corporation, Vaishya Financial Corporation, and have given funds to help poor Vaishyas in their business and education. In similar way, across the nation, all the states have to come forward to create corporation in the same way. Hence, I would request to through this platform to raise our concern across the nation and to convince their respective state government create exclusive Vaishya welfare corporation for the upliftment of the weaker sections of our community so that people at large will get benefit. While I am concluding, I would once again heartily welcome Dr. Harshavardhan to address the gathering through this webinar. Thank you. Thank you very much. Good day. Thank you, T.G. Venkatesh ji, Honorable Member of Parliament and Chairman of International Race Federation at West Bengal. बंधुओं, सर्वप्रथम मैं हमारे वैश्य गुरु मठ हल्दीपुर के परम पूज्य श्री श्री वामनाश्रम स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। यह एकमात्र वैश्य मठ है हिंदुस्तान का और एकमात्र वैश्य गुरु हमारे वैश्य समाज के। उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात आगे करता हूँ। I welcome our foreign dignitaries present in the meeting today. Shri Hari Nair Lunia, Honorable Member of Parliament from Nepal, Dr. Mohammad Nada, His Excellency from Embassy of Egypt, Mr. Febri from Embassy of Goribo, also. I also welcome Shri T.G. Venkatesh, Member of Parliament, Dr. Achyut Samant, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, and Chairman of Telangana Institute of Science, Bhubaneswar. I welcome Shri Subhash Beria ji, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha from Rajasthan, Shri Dilip Gandhi ji, Shri Nand Gopal Nandi ji, Honorable Minister of Uttar Pradesh, Shri Kapil Agrawal ji, Honorable Minister of Uttar Pradesh, Shri Ravi Kanji Garg ji, Chairman Kalyan Board Uttar Pradesh, Shri Ashok Goyal ji, Vice Chairman Jagat Kalyan Board Uttar Pradesh, Shri Ajay Sancheti ji from Nagpur, ex-member of Parliament, Rajya Sabha, Shri Chandrasekhar ji, ex-mayor of Dhanbad, Shri Dilip Chandra Sahu, National President, Nepal West. From I also welcome our associates today who have joined with us. Telangana Institute of Social Sciences, it's one of the biggest hospitals in Odisha. Dr. Achyut Samant, who is a member of Parliament also. Bharat Jain Mahamandal, it is a 125-year-old organization and is being represented by Shri Rakesh Mehta ji, our working president. Shri Banarsidas Gupta Foundation, we are aware कि बनारसीदास गुप्ता जी हमारे वैश्य समाज की एकता के सबसे पहले और हमारे जनक हैं। इनकी प्रेरणा से आज की संस्था चल रही है। उनके बनारसीदास फाउंडेशन को इज रिप्रेजेंटेड बाय श्री अजय बनारसीदास गुप्ता जी, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ IPF, and श्रीमती दाशा गुप्ता जी। It is pleasure welcoming Jito, Shri Karmat Rai Chaudhary ji and Shri Pratik Rathod ji from Westby Medical Research Center, Hyderabad, Dr. Sriman Narayan and Shri Utpal Srinivas, Treasurer of the hospital. Maharaja Agreshan Hospital, Punjabi Bagh, Delhi, Dr. Singla and Shri Subhash Gupta ji, our senior working president. Rajasthan Hospital, Jaipur, Dr. S.S. Agrawal is president of IVF Rajasthan also. I welcome Dr. Hegde, Executive Director of the famous Fortis Escort Hospital, Okhla. I welcome Satish Jain ji, Maharaj Agreshan Hospital, Bangalore. Shri Vaishno Devi Seva Mandal Charitable Trust, Shri Satish Agrawal ji. Rajasthan Academy, Lions Club International Vegetarian, Shri Gaurav Gupta ji. I welcome all my associates to this meeting. I also welcome our senior working president Surendra Gupta ji, our working president Madan Mohan Mittal ji from Punjab. He was ex-president BJP.
Shri Rakesh Mehta ji working president, Subhash Gupta ji working president, Krantilal Mehta ji working president, Subhash Gupta ji working president, Subhash Gupta ji working president from Bangalore, Rajesh Gupta ji working president. I also welcome all foreign office bearers, Shri Sohan Goenka ji, President International IBF, Shri Ashok Mundra ji from Hong Kong, Vinod Dhariwal ji from Hong Kong. I welcome Shri Kailash ji Agrawal from Thailand, Bangkok, Shri Rahul Agrawal ji from Thailand, Bangkok. From Dubai, Shri Suresh Prasad ji and Shri Rajesh Sohan ji, I welcome them. From Nepal, Shri Prem Lashkari ji and Mr. Shah, I welcome to the meeting. I also welcome Secretary General Shri Deepak Mitra ji, Secretary General our Joint General Secretaries Govind Goyal ji, Vipin Ram Agrawal ji. I also welcome our Senior Vice Presidents, Vice Presidents, State Presidents. Today around 24 states are joining. Arunachal Pradesh, Sanjay Shah, Assam, Rajasthan, Andhra Pradesh, Nagpur, Bihar, Dr. Jagannath Prasad, Chhattisgarh, Shri Sitaram ji Agrawal, Goa, Gauri Shirodkar, Haryana, Shri Umesh Agrawal and Durga Dutt Goyal, Delhi, Shri Ravindra Goyal, Shri Naresh Goyal, Himachal Pradesh, Ashok Garg, Jammu, Shri Sanjay Bansal, Jharkhand, Mohan Lal ji Agrawal, Karnataka, Vipin Ram Agrawal, Madhya Pradesh, Shri Govind Goyal ji, Maharashtra, Shri DC Bhartiya Jaiprakash Gupta ji, Mumbai, Krantilal Mehta ji, Orissa, Shri Mahendra Gupta ji, Punjab, Surendra Singla ji, राजस्थान डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल, गुरुदास अग्रवाल जी, गोपाल गुप्ता जी, सिक्किम प्रमोद दानवे जी, तमिलनाडु के शंकर राव एंड मिस्टर तेलंगाना उपाल श्रीनिवास, उत्तर प्रदेश डॉक्टर नीरज बोरा, उत्तराखंड सोमनाथ जी गुप्ता, वेस्ट बंगाल सुदेश अग्रवाल जी. I also welcome all our executive body members, founder members, promoter members, chief patron members in this distinguished meeting to be addressed by our honorable Mr. सभी भाइयों बंधुओं को आज की मीटिंग में स्वागत है. बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में हमारे शुभचिंतक और एडवाइजर डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे साथ में है. मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए और आज का जो बड़ा विषय है बड़ा ही बर्निंग इशू है महामारी से और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत डॉक्टर साहब ने मैं प्रशंसा करना चाहूंगा डॉक्टर साहब की जिन्होंने इस पूरी महामारी में बिल्कुल मेरे को पता था सवेरे 6 से लेकर रात की 2 बजे तक प्रत्येक हॉस्पिटल में जाना पूरे हिंदुस्तान के हर डॉक्टर्स के साथ में चीफ मिनिस्टर के साथ में कोऑर्डिनेट करना और इस महामारी को कैसे करा जाए उसकी बड़ी कुशलता से उन्होंने मॉनिटरिंग की और पॉलिसीज बनाई. उसी कारण हमारा देश 130 करोड़ का से भी आज हम लोग केवल 31 लाख लोग इससे ग्रसित हैं और उसमें 60% ठीक भी हो गए हैं. ये केवल एक कुशल नेतृत्व और एक पॉलिसी मेकिंग का हो पाया है. उसके लिए मैं पूरे समाज की ओर से आईवीएफ प्लेटफॉर्म से डॉक्टर हर्षवर्धन जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ. डॉक्टर साहब ज्यादा समय नहीं लेते मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज का जो विषय है महामारी से आत्मनिर्भर भारत की ओर उस पे आप हमको अपना मार्गदर्शन दें कि हम कैसे उस ओर बढ़े. डॉक्टर हर्षवर्धन जी डॉक्टर विजय आपका स्वागत करते हैं. डॉक्टर हर्षवर्धन जी आप प्लीज आप अपना अनुमोदन दें. सभी बंधुओं को और सभी बंधुओं को और सभी उपस्थित बहनों को मेरी ओर से सादर प्रणाम. अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, श्री टी.जी. वेंकटेश जी जो मेरे साथी हैं, संसद में एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं, बहुत ही खुशदिल इंसान है. सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट गांजी राजा मौलिक गुप्ता जी, सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट सुरेंद्र गुप्ता जी
और बहुत सारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स जो इस संस्था के हैं, मैं शायद उनका सबका नाम नहीं लेता, लेकिन मैं सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दामोदर मोदी जी और कार्यकारी वर्किंग जनरल सेक्रेटरी जनरल श्री दीपक कुमार मित्तल जी, बहुत सारे और दूसरे हमारे यहाँ आज इस कार्यक्रम में साथी उपस्थित हैं। बहुतों के नाम अभी लिए गए हैं। मैं नहीं जानता कि महेश गुप्ता जी जो हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं वो इस कार्यक्रम में हैं या नहीं, लेकिन फॉरेन डेलीगेट्स मुझे बताया गया कि हरि नारायण रौनियार जी जो ऑनरेबल एमपी हैं नेपाल के, वो भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद नाडा साहब भी हैं जो कल्चरल काउंसलर हैं एम्बेसी ऑफ इजिप्ट के, और मेरे पार्लियामेंट में साथी डॉक्टर अछूता सामंता जी भी हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी लोकसभा एमपी, और अनिल अग्रवाल जी ऑनरेबल एमपी राज्यसभा। श्री महेश पोद्दार जी ऑनरेबल एमपी राज्यसभा। श्री सुभाष बराला जी हमारे राजस्थान के, सुभाष बहेरिया जी, सॉरी, वो तो शायद सुबह भी मेरे साथ एक कार्यक्रम में थे राजस्थान के। और श्री दलीप गांधी जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता जी नंदी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। श्री कपिल देव अग्रवाल जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। डॉक्टर नीरज बोरा जी लखनऊ से एमएलए। रविकांत गर्ग जी जिनको हम 25 साल से देख रहे हैं, वैश्य समाज के लिए काम करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं मथुरा से। श्री योगेश मोहन गुप्ता जी IIMT यूनिवर्सिटी के चांसलर, और बहुत सारे लोगों का विदेश से भी नाम लिया गया। सोहन गोयनका जी का, अशोक मुद्रा जी का, धारीवाल जी का, राहुल जी का, और बहुत सारे नेपाल थाईलैंड के लोगों का, अशोक गोयल जी का, अजय जी का, चंद्रशेखर जी का, दिलीप जी का। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी सूची है, और इस वर्चुअल मीटिंग में ये कंफर्म भी करना बड़ा मुश्किल है कि कौन है कि नहीं है। कई बार शक्ल स्क्रीन पर आती है, कई बार नहीं आती है, लेकिन बहुत पुराने समय से जो जुड़े हैं ऐसे भी बहुत सारे लोग। भारत जैन महामंडल के राकेश मेहता जी, बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन के अजय बनारसी दास जी, और श्रीमती दर्शना गुप्ता जी, जीतो के गणपत राज चौधरी साहब और प्रदीप राठौर जी, वसावी मेडिकल रिसर्च सेंटर हैदराबाद के गांजी राजा मौली गुप्ता और डॉक्टर श्रीमन नारायण जी, पंजाबी बाग दिल्ली के हमारे महाराजा अग्रसेन अस्पताल के सुभाष गुप्ता जी, राजस्थान के हमारे जो मेडिकल एसोसिएशन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर SS अग्रवाल जी, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल बेंगलोर के सतीश जैन साहब, वैष्णो सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट के सतीश अग्रवाल जी, एलाइट सर्कल के विवेक बंसल, राकेश गुप्ता जी, राजस्थान एकेडमी और लायंस क्लब इंटरनेशनल दिल्ली वेजिटेरियन से गौरव गुप्ता जी, डॉक्टर हेगड़े, बहुत सारे लोग। मैं इन सब माननीय अपने इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के सदस्यों का, बहुत सारे जो हमारे इसमें कार्यक्रम में सीनियर IVF के ऑफिस बेरर्स हैं, उनको सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और ऐसे तो वेंकटेश जी ने अभी आप सबकी ओर से शुभकामना दी है अशोक अग्रवाल जी को जो हमारे अध्यक्ष हैं। मुझे नहीं पता था कि जब ये कार्यक्रम का समय मैंने आज दिया तो मेरे को ये नहीं पता था कि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन आज ही मुझे ये पता लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने बहुत ठीक दिन जो है
उनको इस कार्यक्रम के लिए समय दिया ताकि हम लोगों को ये सुविधा हो गई कि सब लोग जॉइंटली उनको उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं भी दे पा रहे हैं। उसके लिए मैं हार्दिक बधाई अपने सभी यहाँ सरकार में साथियों की ओर से देना चाहता हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों, आरोग्य रहें, यशस्वी हो, सफल हो, और आपके नेतृत्व में हमारा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन महासम्मेलन, जो बहुत लंबे समय की तपस्या श्री रामदास अग्रवाल जी ने इस संस्था को खड़ा करने में की, संस्था के मुख्य सलाहकार स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी जैसे लोगों ने जिस तरह का योगदान इस संस्था के लिए किया, उसको शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और मैं हृदय से श्री रामदास अग्रवाल जी और श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी की पवित्र स्मृति को नमन भी करना चाहता हूँ। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब सदस्यों को जिस प्रकार से उन्होंने निस्वार्थ और निष्काम सेवा की, खाली वैश्य समाज के लिए काम नहीं किया, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, तकलीफग्रस्त लोगों के लिए काम किया, और महाराजा अग्रसेन जी के द्वारा स्थापित आइडियल्स को अपने जीवन में भी उतारा, और हम सबको भी उनको उतारकर अपने जीवन को और ज़्यादा समाज के लिए उपयोगी बनाने की प्रेरणा दी। मैं हृदय से उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने आज इस कार्यक्रम में हम लोगों को रामदास अग्रवाल जी की और हमारे रमेश चंद्र अग्रवाल जी जैसे लोगों की कमी निश्चित रूप से महसूस हो रही है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस कोविड के समय पे भी हमारे सभी प्रमुख साथी देश भर से ही नहीं अपितु पूरी दुनिया से एकत्रित हुए हैं। जहाँ जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के कार्यक्रमों में पास्ट में मुझे जाने का मौका मिला है, मैंने आप सबके उत्साह को, आप सबकी कर्तव्य निष्ठा को और देश और समाज के लिए करने के भाव को प्रत्यक्ष देखा है, उसको अनुभव किया है। और मुझे हमेशा इस बात पर गर्व होता है कि हम सब लोग महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं। महाराजा अग्रसेन ने एक राजा के रूप में जिस प्रकार के आदर्श समाज के लिए स्थापित किए, वो हम सबको जीने के लिए पर्याप्त एक सात्विक प्रेरणा देते हैं। और ऐसे अवसर उन सब संस्कारों को दोबारा पुनः स्मरण करने का अवसर होते हैं, और अपने जीवन में पहले से और बेहतर कैसे हम कल से कर पाएं, इसका संकल्प लेने के अवसर होते हैं। इसलिए उन सब पुनीत आत्माओं को स्मरण करते हुए, जिनका कंट्रीब्यूशन देश और समाज के लिए और हमारे वैश्य फेडरेशन के लिए अविस्मरणीय है, हम लोग आज नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। आज जैसा कि अभी अशोक अग्रवाल जी ने कहा कि हम सब लोग एक विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। सारे देश में 2020 का जो वर्ष है, इसको अगर कोरोना का वर्ष भविष्य में कहा जाएगा तो ना तो ये कोई आश्चर्य की बात होगी, ना ही इसमें कोई अतिशयोक्ति होगी। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि कोरोना के बारे में हमने काम 8 जनवरी से करना प्रारंभ किया था। 7 जनवरी को सारी दुनिया ने
ये जानकारी पहली बार औपचारिक तौर पर प्राप्त की थी कि चाइना के अंदर एक नया कोरोना वायरस आया है। इसकी जानकारी चाइना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्राप्त जानकारी से सारी दुनिया को पता लगा और इसी कार्यालय में, इसी निर्माण भवन में जहां मैं आपके सामने अभी बैठा हूं, यहाँ पर हमने 8 जनवरी को 24 घंटे से भी कम समय के भीतर हमने अपनी पहली टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी को बुलाया था। उसमें सारे एक्सपर्ट्स थे और WHO के प्रतिनिधि भी उसमें थे और हमने उसी दिन से अपने देश के अंदर अगर कोरोना वायरस आ जाए तो उसके लिए कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट का देश को अनुभव है बहुत सारी बीमारियों को जूझने का। हमने पास्ट में देश ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों को जड़ से समाप्त भी किया है। नीपा वायरस, स्वाइन फ्लू, इबोला और बहुत सारे और वायरस, 80-90 के दशक में एड्स का वायरस आया था भारत में और समय समय पर तरह तरह की बीमारियां आती रही हैं। उन सबको पुराने अनुभवों का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने अपने भारत सरकार में, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में इसका संज्ञान 8 जनवरी को ही लिया था और 17 जनवरी तक सारे देश को हम लोगों ने डिटेल्ड एडवाइजरीज इशू कर दी थी। भारत में आने वाले यात्रियों के संदर्भ में आप जानते हैं कि सारे एयरपोर्ट्स पे और दूसरे स्थानों पर जहां भी पॉइंट ऑफ एंट्री थे वहां पर हम लोगों ने सर्विलेंस शुरू कर दिया था। वो चाहे शिप के सी पोर्ट्स हो, चाहे वो नेपाल के साथ जुड़ा हुआ हमारा लैंड बॉर्डर हो। और हमने इंतज़ार नहीं किया था कि 30 जनवरी को पहला केस भारत के अंदर आएगा। प्रधानमंत्री जी ने पहला केस आते ही एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था मेरी अध्यक्षता में और अब तक उसकी हम लोगों ने 20 से ज़्यादा बैठकें की है। पिछले 6, 7, 8 महीने की जो हिस्ट्री है उसको मैं आपके सामने दोहराना नहीं चाहता हूँ। आप जानते हैं कि किस प्रकार से भारत सरकार ने इस कोविड के विषय को बहुत ही प्रोएक्टिवली, जिसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी, ग्रेडेड स्ट्रैटेजी, समय से पहले कल्पना करके कि कल क्या हो सकता है उसके हिसाब से हमने सारी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया। आपने सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। आपने जनता कर्फ्यू से लेकर और लॉकडाउन तक और आज लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक उसके वेरियस फेजेस को भी सबने देखा है, महसूस किया है और हम सबको उसकी तकलीफ भी सहन करने का मौका मिला है। हम सब, मैं जानता हूं कि बहुत तरह के कष्टों का सामना हमको 8 महीने में करने का कारण बना है और इसी के कारण मैं कहता हूं कि देश के लोग बधाई के पात्र हैं कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमने अपना धैर्य नहीं खोया। हमने अपनी हिम्मत के साथ अपने संस्कारों के अनुरूप गहराई से और गंभीरता से देश की समस्याओं के समाधान के लिए अपने कंट्रीब्यूशन को करने में ज़रा भी संकोच नहीं किया है। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से देश ने विषम परिस्थितियों में, जब हमारे पास किसी भी प्रकार की बहुत सारी जो आवश्यक साधन होने चाहिए थे उन साधनों की भी कमी थी। आप में से मैं नहीं जानता कितने लोग ये जानते होंगे कि आज जो घर घर आप देखते हैं आराम से जो टेस्ट हो रहा है, एक दिन में 1 मिलियन तक हम टेस्ट कर रहे हैं कोविड को जांच करने के लिए,
जिसके लिए एक लेबॉर्ट्री से 1500 से ज़्यादा लेबॉर्ट्री हम लोगों ने 6 महीने में स्थापित कर दी हैं। ये जांच आज से 5 साल पहले इसका सैंपल अमेरिका के सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल में अटलांटा में जाता था, और वहाँ से उस परिस्थिति से हम लोग भारत को उस परिस्थिति तक लेकर आए हैं जहाँ जनवरी फरवरी के महीने में देश भर में पीपीई के लिए हाहाकार मचता था, वेंटिलेटर्स के लिए हाहाकार मचता था, N95 मास्क के लिए हाहाकार मचता था, बहुत सारी आवश्यक दवाइयों के लिए हाहाकार मचता था। आज हम अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को फ़ोन करके बोलते हैं कि आपको हम और पीपीई भेजना चाहते हैं, हम आपको और मास्क भेजना चाहते हैं, हम आपको और आवश्यक सामग्री भेजना चाहते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि अभी रहने दीजिए, अभी हमारे पास स्टोर में रखने के लिए जगह नहीं है। जो सामान हम भारत में बनाते नहीं थे, बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज वो सब पर्याप्त मात्रा में बनाकर और हम इसी क्राइसिस के दौरान उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति के अंदर आ गए हैं। जो किट आज से 5 महीना पहले हमें टेस्टिंग के लिए बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, 2000-2500 रुपये तक एक टेस्ट की कीमत होती थी, आज हमारे देश में सैकड़ों लोग उनको भारत के अंदर बना रहे हैं और हम वही सब कुछ 200-300 रुपये के अंदर जो है वो देश के अंदर उपलब्ध करा पा रहे हैं। जो वेंटिलेटर्स लाखों रुपए में आते थे, उसी के ऐसे वर्जन्स हमारे भारत के वैज्ञानिकों की सहायता से हमारे देश के लोगों ने बना दिए हैं, जिनसे देश के अंदर भी हमारी ज़रूरत का सामना हो रहा है और हम आज उसको एक्सपोर्ट करने की भी स्थिति में आए हैं। कुछ दवाइयाँ तो हम दुनिया के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाई दुनिया के 150 देशों को भारत आज भेज रहा है। बहुत सारी दवाइयों के एक्सपोर्ट पर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों को लिटरली ख़त्म करने का एक प्रकार से वातावरण बना है। और जैसा अभी अशोक जी ने कहा कि 1.35 बिलियन के देश में 135 करोड़ लोगों के देश में, जिसकी आबादी दुनिया के बड़े बड़े बहुत सारे देशों की आबादी को जोड़ लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा है। वहाँ पर जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग भारत के बाहर से आए, कोई हार्वर्ड से आए, कोई अमेरिका के प्रतिष्ठित और दूसरे संस्थानों से आए, उन्होंने यहाँ टेलीविज़न चैनल्स पर आकर बड़े बड़े इंटरव्यूज़ दिए और उन इंटरव्यूज़ में कहा कि जुलाई अगस्त के अंदर भारत के अंदर 300 मिलियन केस हो जाएंगे। सारे देश में डर का वातावरण पैदा किया, 6 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी, भारत के गांव-गांव के अंदर कोरोना जैसा वायरस वो घर घर में घुस चुका होगा। आज आप सब जानते हैं, जैसा अभी अशोक जी ने भी कहा कि 300 मिलियन केस नहीं, अभी हम 3 मिलियन केस तक पहुँचे हैं। उन 3 मिलियन के अंदर भी 76% केस जो है वो ठीक होकर अपने घर चले गए हैं और बाकी केसेस भी जो अस्पताल में या घर के अंदर होम आइसोलेशन में बीमारी का ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो ऑन रोड टू रिकवरी हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिकवरी रेट, दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट 1.84 और इसी 6 महीने के अंदर अंदर 15,000 से ज़्यादा हम लोगों ने कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल, डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटी, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर्स, इनको विकसित कर लिया है और इनके माध्यम से 25 लाख से ज़्यादा बेड्स भारत के अंदर डेवलप हो गए हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भारत सरकार ने डिटेल्ड हेल्थ एडवाइजरी सारे देश की सरकारों को दी है और प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन रहा है
कितनी तकलीफ हुई लोगों के, माइग्रेंट लोगों के इधर से उधर जाने पर, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से एक तो मैं समाज के लोगों को, अपने वैश्य समाज के लोगों को भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। हजारों संस्थाओं ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब इस त्रासदी के दौरान भूखा नहीं रहेगा। भारत सरकार ने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, गरीबों को पूरे 6 महीने तक उनको हर प्रकार से खाने के लिए राशन उपलब्ध रहे, इसकी व्यवस्था की। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते में गरीबी के कारण उनके परिवार के ऊपर दूसरे खतरे ना मंडराने लगे, उसकी व्यवस्था की। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआती दौर के अंदर ही सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को मदद करने के लिए 15,000 करोड़ का हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पैकेज की व्यवस्था की, जिसके माध्यम से हमने तुरंत उस पैसे को सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया कि देश में कहीं पर भी लोग सफ़र नहीं करने चाहिए, सब प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। पहले 1,70,000 करोड़ का बड़ा पैकेज प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के कल्याण के लिए विकसित किया। और अभी जब आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात की है, तो उस आत्मनिर्भर भारत के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमको सबको बहुत गहराई से समझना होगा। उसको बताने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को लगभग 1 हफ्ते तक हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। तो आप सोच सकते हैं कि मैं अपने छोटे से उद्बोधन में उसके बारे में कैसे चर्चा कर सकता हूँ। ज़्यादातर हमारे समाज के लोगों ने उसको गहराई से समझा है और उसमें समाज के हर वर्ग के, हर व्यक्ति के लिए, छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक, किसी भी स्तर के कर्मचारी से लेकर एमएसएमई से लेकर और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, सबके लिए इस प्रकार की कोशिश की गई है कि इतनी तकलीफ के बावजूद भी आप हिम्मत से डटे रहें और भारत को अपने पांव पर खड़ा करने में हम सक्षम हो सकें। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के लोगों ने, और उसमें ये ठीक कहा अशोक जी ने कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ इस सारे पीरियड में सहने का काम जहां एक तरफ बहुत ही गरीब लोगों को हुआ, उसके साथ साथ जो हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, जो एक प्रकार से अपने छोटे, बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग मिडिल क्लास हैं, छोटे से ये मिडिल क्लास व्यापार करते हैं। लॉकडाउन के कारण, दूसरी परिस्थितियों के कारण, और आज जिस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई गैदरिंग नहीं हो सकती है, कोई दूसरे कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं, बाज़ारों में, मार्केट्स में जाने के अंदर बहुत सारी पाबंदियां हैं, अनेक किस्म के रिस्क हैं। इन सब के अंदर हमारे समाज के लोगों को भी बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन आप सब इस बात को भी ज़रूर अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये सब कुछ, जो कुछ भी 8 महीने के अंदर हुआ और किया गया, ये बहुत ही प्रोएक्टिवली देश के लोगों को, जहां अमेरिका और इंग्लैंड जैसे, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े बड़े देश इस बीमारी के दुष्प्रभाव को, ब्राज़ील जैसे देश इतनी आसानी से नहीं झेल पाए, वहाँ भारत ने अपने आप को इसके लिए पूरी गहराई से तैयार किया। और उसके लिए आपने सबने मिलकर अपना संपूर्ण सहयोग दिया। हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स ने सहयोग दिया, हमारे लीडर्स ने सहयोग दिया। एक दिन नीति आयोग ने मेरा वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस कराया और उन्होंने बताया कि देश के अंदर 92,000 ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, 92,000, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कराया
उनके बहुत सारे प्रमुखों के साथ, और ये कहा कि ये संस्थाएं वो हैं जिन्होंने पूरे इस तकलीफ में ये सुनिश्चित किया कि देश के अंदर गरीबों तक इस त्रासदी के बावजूद भी भोजन पहुंचता रहे। इसलिए जैसे वैश्य समाज हमेशा तकलीफ के अंदर उसने अपना राष्ट्र धर्म, उसने अपना समाज धर्म, उसकी भावना को कभी भी क्षीण नहीं होने दिया है। इस तकलीफ के अवसर पर भी जब सारा देश कोरोना से जूझ रहा है, इकोनॉमी के ऊपर भी एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है, लोगों के रोजगार के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, लोगों के व्यवसाय के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, हर जगह पर तकलीफ निश्चित रूप से बढ़ी है। लेकिन उस सब के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बहुत गहराई और गंभीरता से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन और रात लगे हैं। मैं क्योंकि उनको बहुत नज़दीक से देख रहा हूं, किस तरीके से हर क्षेत्र के दिन रात एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होती है, नई नई नीति बनाई जाती है, उसकी घोषणा होती है। इस सारे त्रासदी के काल के दुष्प्रभाव से कैसे सारे समाज को बाहर निकालना है, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात करते हैं, कोई भी बात अपने हाथ में लेते हैं, तो वो उसके सफलता के, उसके अंजाम तक उसको लेकर जाते हैं। जितने भी कार्यक्रम उन्होंने पिछले 5-6 साल में लॉन्च किए, जब वो शुरू हुए थे तो हमको लगता नहीं था कि शायद इसमें कितनी सफलता मिलेगी। लेकिन जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की तो देश के 100 करोड़ लोगों के, जो देश के 100% लोगों के, गरीबों के खाते खुल गए। सैनिटेशन की बात की तो देश में करोड़ों टॉयलेट्स शुरू हो गए। डिजिटल इंडिया की बात की तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक एक पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया। और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए गैस के चूल्हे की बात की तो फिर करोड़ों बहनों को किस प्रकार से लाभ हुआ। सब क्षेत्रों के अंदर जो जो कुछ हाथ में लिया, वो सारी चीजें हाथ में लेकर उनको सफलतापूर्वक उन्होंने कोशिश किया कि उन विजन्स को, उन मिशंस को मिशनरी ज़ील से लेकर आगे बढ़ा जाए और आने वाले समय में 2022 तक एक नया भारत देशवासियों को दिया जाए, जहाँ सबके चेहरे पर मुस्कान हो, सबके लिए स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पोषण की पर्याप्त व्यवस्था हो, हर हमारी बहन माता के लिए पर्याप्त सुरक्षा की और हर बुजुर्ग के स्वाभिमान की रक्षा हो। और देश में हम राष्ट्रवाद और मानवतावाद, इस वाद को पूरी तरह से अक्षुण्ण रखने में सफल हों। और जितने दूसरे वाद हैं जिसके कारण देश में तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, देश तरह तरह की बातों के कारण बढ़ता है, उन सब से देश को मुक्त करने का प्रयास किया जाए। हम सब लोगों ने अपने जीवन में महाराजा अग्रसेन से लेकर और आज तक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी दुनिया के अंदर पहचान खाली इसलिए नहीं है कि वो वैश्य थे। वैश्य के रूप में तो हम भी उन्हें पहचानते हैं, लेकिन शायद उनकी पहचान उनके कर्मों के कारण, उनके निस्वार्थ सेल्फलेस डेडिकेशन टू द सोसाइटी, इसके कारण है। और वैश्य समाज को इस तरह के लोगों पर गर्व है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे अवसर पर जब तकलीफ में है समाज किसी भी प्रकार की, वैश्य समाज को आगे बढ़कर अपने हाथ में समाज का नेतृत्व लेकर और लोगों को धैर्यपूर्वक किस प्रकार से हम लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने में सहायक बन सकते हैं। अगर हमें थोड़ी तकलीफ है तो भी राष्ट्र हित में, समाज हित में हम अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज करके
और जो देश में ज़्यादा तकलीफ में लोग हैं उनकी तकलीफ को दूर करने में जब अपने हृदय से, मन से और आत्मा से योजनाएं बनाकर उन योजनाओं पर काम करेंगे तो सही मायने में हमको एक वैश्य होने की अनुभूति होगी, एक वैश्य होने पर गर्व महसूस होगा। ये जो ऐसे त्रासदी के काल हैं ये आएंगे, ये जाएंगे, लेकिन इतिहास हमेशा ऐसे समय में जिम्मेदार लोगों ने किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को निभाया इसको हमेशा याद करेगा। और इस नाते मैं जितने लोग यहाँ, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में हैं, मैं तो वैश्य समाज का एक बहुत छोटा सा साधारण सा सिपाही हूँ। मैं नहीं सोचता कि मैं आप में से किसी का कोई मार्गदर्शन कर सकता हूँ। आप सबके पास जीवन पर्यंत अच्छे कामों को करने का अनुभव है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब आज इस कार्यक्रम से नई ऊर्जा के साथ नया संकल्प लेकर जाएंगे। हम सब मिलकर 2022 तक नया भारत बनाना चाहते हैं और उसके बाद भारत को दोबारा से विश्व गुरु भारत बनाना चाहते हैं। ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसका भविष्य उसके गौरवशाली अतीत से भी ज़्यादा सुंदर और श्रेष्ठ हो। और जब ऐसा भारत बने तो हमको सबको इस बात का संतोष होना चाहिए कि ऐसे भारत को बनाने में हम सबका भी महत्वपूर्ण योगदान है। हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें ध्यान आए कि इस भारत को बनाने की जब यात्रा चल रही थी हमने भी अपनी बहुत बड़ी आहुति दी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अशोक अग्रवाल जी के नेतृत्व में, जिनके पास स्वर्गीय श्री रामदास अग्रवाल जी का डीएनए है, जिन्होंने समाज को संगठित करने में, समाज को सेवा का भाव सिखाने और बताने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उनकी पवित्र स्मृति से प्रेरणा लेकर हम लोग आने वाले अपने जीवन में उस नए भारत को बनाने के लिए नया संकल्प लेकर जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आज तो ज़्यादा कुछ लंबी बात शायद करने का अवसर ना हो, लेकिन ये कोरोना काल जब समाप्त होगा मुझे पूरा विश्वास है कि इसी साल के अंदर जल्दी ही हमें इस तकलीफ से मुक्ति भी मिलेगी और इसी साल के अंदर इस बीमारी के खिलाफ जब वैक्सीन का निर्माण हो जाएगा तो उस वैक्सीन के निर्माण की यात्रा में भी आप देखेंगे कि सारी दुनिया के अंदर भारत जो है वो दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। ऐसे में आप सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आपके सबके परिवारजनों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस यूं तो देखने और सुनने के अंदर बहुत भयानक है, बहुत दुष्ट है, बहुत तेजी से बात करते ही करते एक व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है। इसीलिए इसने थोड़े समय में सारी दुनिया को प्रभावित किया है, लेकिन इसके साथ साथ इतना चंचल होने के बावजूद इस वायरस की एक और खास बात है कि इसने अपने आप, यानी किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस से बचे रहने के लिए इसने कोई रॉकेट साइंस जो है हमारे लिए नहीं तय की है। मैं अभी भी देख रहा हूं कि जितने मुझे लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है और हम लोग बहुत तरह की गलतफहमियों में रहते हैं कि ये शायद हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। मैंने जैसा कहा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अगर मास्क को नहीं छोड़ा और 2 गज की दूरी वास्तव में बना के रखी और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी अननोन सरफेस को
छूते रहने के बाद आप अपने हाथों को साबुन से, पानी से धोकर रखेंगे, अपने हाथों को मुंह, नाक और आंख के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो केवल ये छोटी छोटी 3-4 बातों से ही मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका कोरोना वायरस बाल बांका भी नहीं कर सकता। मैंने पिछले 6 महीने में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां मैं ना गया हूं, कोई ऐसा कोविड का वार्ड नहीं जहां कोविड के मरीज के साथ जाकर मैंने उसके साथ खड़े होकर बात ना की हो। लेकिन सावधानी रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जितनी मिनिमम एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी अपने जीवन में आवश्यक है, उसको करने में कोई चूक नहीं की है। और उसके कारण अभी तक 8 महीने में भगवान की कृपा है कि कोरोना वायरस मेरे आसपास भी नहीं आ पाया है। और मैं चाहता हूं कि हमारे वैश्य समाज के लोग इस संदेश को घर घर पहुंचाएं और उसको पहले खुद प्रैक्टिस करें, और खुद प्रैक्टिस करने के बाद हम ये संदेश उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो अभी भी कोरोना के साथ लापरवाही से खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार ने अगर अनलॉक किया है तो इसलिए किया है कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है उसको जो तकलीफ हो रही है, लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसके बीच में, और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसके प्रिंसिपल्स को अपनाने के बीच में कोई ना कोई बैलेंस बना के रखना है। लेकिन इसके लिए समाज का और समाज के जिम्मेदार लोगों का जो कोऑपरेशन है उसकी बहुत आवश्यकता है। और उसके लिए आप सबसे मैं ये अनुरोध करता हूं कि जैसे अस्पताल में डॉक्टर और नर्स कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, अस्पताल में सैनिटेशन के और सिक्योरिटी के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस के लोग और समाज में दूसरे लोग कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के लोग समाज के लोगों को सही जानकारी देने के मामले में, उसका एक आंदोलन विकसित करने के मामले में एक सुपर कोरोना वॉरियर्स की तरह काम करने का संकल्प ले। थोड़े दिन का और समय है जिसके अंदर हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम लोग दिवाली के आसपास मिलेंगे तो इस कोरोना की चर्चा जो है शायद उसको इतना ज़्यादा करने का हम में से किसी का भी कोई मन नहीं करेगा। और जैसे दूसरी बीमारियां पहले भी दुनिया में आई हैं, वैसे ही कोरोना वायरस की बीमारी भी ये दुनिया के अंदर एंडेमिक हो जाएगी। एंडेमिक होने का मतलब होता है कि दूसरी बीमारी की तरह कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर, किसी किसी देश में, किसी किसी स्टेट में ये कभी कभी अपीयर होगी। और जैसे बाकी बीमारियों के लिए हम कहते हैं कि हम फलानी बीमारी से प्रभावित हो गए हैं, ऐसे ही लोग केवल इसके बारे में बात करेंगे कि उस फलाने आदमी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है। इससे ज़्यादा इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बार बार कहूँगा कि अगर ज़रा सा भी सावधानी चूकी तो दुर्घटना घटी। इस बात को जो है आप याद रखिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जिम्मेदारी का व्यवहार करते हुए, तकलीफ़ को सहते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावना को गहराई से समझते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए विषम परिस्थितियों में भी अपने संपूर्ण कंट्रीब्यूशन को निस्वार्थ भाव से देश और समाज के लिए प्रस्तुत करेंगे। मैं पुनः अशोक अग्रवाल जी को, जो लगातार मुझे पिछले समय से इस मीटिंग के लिए आग्रह कर रहे थे, मैं धन्यवाद करता हूं उनके एक प्रकार से पेशेंस के लिए कि उन्होंने अपना आग्रह करना नहीं छोड़ा। मैं उन्हें हर हफ्ते कहता था अगले हफ्ते देखते हैं, अगले हफ्ते देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं थी, बहुत सारी प्रकार की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन उनके आग्रह करते रहने के कारण आज ये मीटिंग संभव हुई। मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, सबसे व्यक्तिगत बातचीत करने का तो शायद मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बहुत शीघ्र ही अशोक अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोग
आने वाले समय में किसी न किसी बड़ी ऐसी मीटिंग के अंदर भाग लेंगे जहाँ फिजिकली भी हम सबको मिलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, महाराजा अग्रसेन की जय। डॉक्टर साहब, हृदय से इंटरनेशनल फेडरेशन की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का आपसे प्रश्न है, मैं 10 मिनट और आपसे देना चाहूँगा। I will now request Dr. Mohammad Naga kindly address. Dr. Mohammad Naga, kindly unmute Mr. Naga. Ashok ji, good afternoon. Can you hear me? Yes, we can hear you. Good afternoon, His Excellency Honorable Minister, Dr. Harsh Vardhan. It's a pleasure and honor to be invited to participate in such valuable program, and also it's a pleasure to convey greetings to Her Excellency Dr. Marasi, Ambassador of Egypt, India. It's also a great opportunity to meet His Excellency Mr. Minister of Health and other dignities and excellencies in the webinar, and also to know some of the great efforts that has been exerted by the government of Egypt in such situations, in such circumstances that world is passing on it. So there are a lot of efforts put by the government to face this challenge, and we wishing more success for Egypt and India in their efforts. And also it's an opportunity if there be addressed, if there is a possibility to address more collaboration between Egypt and India in the several aspects and fields, including health and to face the challenge of coronavirus in other countries. There are a lot of efforts also in Egypt has been done, and still they are doing a lot of efforts to control and manage the thing in the different areas, including education, health, keeping the business open, the big challenge to control the virus, to control the pandemic, and at the same time to make life, quality life through its opportunity to share the exercises, efforts and this information. Thanks again, and wish the best for Egypt and India. Hoping the future to be more better and more fruitful and more safe. So wishing safety life for all of you. Thank you so much. Thank you, His Excellency Dr. Mohammad. I'm sure your presence in India will build a stronger relation with your country. Thank you very much. मैं हमारे बीच में आए हमारे एमपी डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा वे डॉक्टर साहब के सामने उनके जो प्रश्न रख करके और सबके समाज के बीच में अपनी चर्चा रखे। डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, और बहुत बहुत स्वागत हमारे यशस्वी आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, और सभी जो इस वर्चुअल मीटिंग में भाग ले रहे हैं, सभी हमारे वैश्य फेडरेशन के माननीय सदस्यों और अधिकारियों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय अशोक कुमार जी हमारे जो उनको मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देता हूँ, और वास्तव में ये बड़ा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने पूरे देश को प्रदान किया है कि संपूर्ण विश्व के अंदर भारत को एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।
संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद 135 करोड़ की जनसंख्या के बावजूद किंतु तत्परता के साथ हमने नियंत्रण भी किया है और इलाज भी किया है। आज वो हमने कहा पूरे संसार के अंदर है। मैं अधिक बोलने की जरूरत नहीं समझता। निश्चित रूप से जैसा हमारे आगे हम कोविड से मृत्यु को बचाएंगे, हम स्वस्थ हो रहे हैं और स्वस्थ हो जाएंगे। शायद तब तक वैक्सीन भी आ जाए और भारत का योगदान है इस कोविड को रोकने के मामले में ये दुनिया के अंदर मैं सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ, सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ और आगे डॉक्टर साहब को पुनः एक बार उनको नमस्कार करके उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद अशोक जी। धन्यवाद साहब। हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। धन्यवाद अशोक जी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार, जिनके नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी दुनिया में भारत को स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर बना रहे हैं और न केवल स्वास्थ्य के मामले में बहुत सारे मामले में हम लोग आत्मनिर्भर बना पाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई। सभी मेरे जितने IVF के सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सबको इस कार्यक्रम से जुड़ने की शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वागत। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हर बात को बहुत ही विस्तृत रूप से रखा है और मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन दिया। पैंडेमिक से आत्मनिर्भर भारत आज देश की, समाज की आवश्यकता थी कि इस प्रकार का निर्देशन, इस प्रकार का मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त हो। आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इस पूरे विषय को रखा है और मुझे लगता है आपके इस मार्गदर्शन से युवाओं में और विशेष करके हमारे समाज के युवाओं में एक आगे बढ़ने की जो इच्छा जागृत होगी, वो न केवल उनका उत्थान करेगी, उनका विकास करेगी, अग्रसर करेगी विकास। डॉक्टर साहब, आप सब जानते हैं कि ऐसे समाज के हमेशा से देश की जो भी कार्यक्रम चले हैं देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको हम लोगों ने बखूबी किया है और देश की जीडीपी में भी हमारे वैश्य बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। जब कोरोना कोविड-19 शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, हमारे जितने भी भाई थे, जितने समाज के लोग, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ के हमारे मजदूर भाइयों को, जिनको आवश्यकता थी, उनको खाना खिलाया, उनकी सेवा की और हर मामले में बहुत आगे बढ़ने। तो इस मामले में वैश्य समाज हमेशा से, जैसा कि आपने कहा था, हमेशा बहुत अग्रणी होता है और समाज का, देश का कोई भी काम उसमें कभी भी हम लोग पीछे नहीं रहते। लेकिन आज आवश्यकता है कि हमारे भाइयों को भी कुछ शक्ति मिले। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जिनको व्यापार में इस समय दिक्कत आ रही है। सरकार की नीतियां बहुत अच्छी बन रही हैं, लेकिन उन नीति का जो अधिकारी गण है उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कतें पैदा करते हैं। नीति बहुत अच्छी बन रही है, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को समय समय पे समीक्षा बैठक लेने की आवश्यकता है कि पॉलिसी बनी उसका लाभ कितना मिला जनता को। अगर ये काम हो जाएगा तो मुझे लगता है हमारे समाज के जो युवा हैं, हमारे समाज के जो और बिजनेसमैन हैं, वो बहुत देश की सेवा कर सकते हैं, देश की जीडीपी में योगदान कर सकते हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो, उसको भी हम लोग कोविड के बाद भी पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे समाज के लोग बहुत मेहनती और बहुत निष्ठा के साथ काम करते हैं।
तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपने पॉलिसी बनाई है, बहुत अच्छा काम किया है। कोविड में देश ही नहीं पूरी दुनिया आप लोग देखती है, आपने उसको भी किया है, कंट्रोल भी किया है और इसको बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई साधुवाद। लेकिन एक बात, अधिकारी स्तर पर भी जो बाकी विकास की और बिजनेस की और स्टार्टअप की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा की जानी आवश्यक है, ताकि हमारे सरकार ने नीतियां बनाई हैं उनका सब लोगों को उचित लाभ मिल सके। मेरा आपसे इस बात चाहिए तो आने वाले समय में भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो जरूर पूरा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आपने इस कोविड इतनी अच्छी धन्यवाद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, माननीय सांसद। हमारे बीच में स्टूडेंट वी आर विद अस डॉक्टर हेगड़े फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल ओखला। डॉक्टर हेगड़े, kindly you have Dr. Hegde. Dr. Harshvardhan Hegde from Fortis Hospital, kindly address. I think so. Yes, Dr. Hegde. Thank you very much, Dr. Agarwal. Thank you very much for largest out there. My question for is also Harshvardhan ji is that in this pandemic, things have come over. It's been from companies to products. So it's also a chance for us to get research and project what techniques not only manage this pandemic but for along. Dr. Hegde, we are not able to listen you. Your sound is not there. Dr. Hegde. Not audible, sir. Not audible. I welcome Dr. Wali to the meeting. Dr. Wali साहब नमस्कार, स्वागत है आपका सभा में। मैं फिर डॉक्टर हेगड़े को लूंगा। हमारे साथ में भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष जो 100 साल पुरानी संस्था है के राकेश मेहता जी उसके अध्यक्ष हैं। राकेश मेहता जी, आप अपने विचार रखें। श्री राकेश मेहता जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। महेश पोदर जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रांची से हमारे साथ में हैं। महेश पोदर जी, हमारे साथ में वासवी मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर हैदराबाद से हमारे उपलक्ष्मी निवासी अच्छा मौका दिया मेरे को बात करने का आईवीएफ का तरफ से एंड वासवी हॉस्पिटल का तरफ से। मंत्री जी, आपको पहले कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन बन गया, बहुत खुशी का बात है। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन तेलंगाना तरफ से आपको धन्यवाद करूंगा, पूरा तरफ से आईवीएफ का तरफ से। मेरा वासवी हॉस्पिटल में भी गरीब लोगों को भी ट्रीटमेंट कर रहा था। इधर कोविड पेशेंट को भी कोविड का ट्रीटमेंट भी चालू किया था। ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वैश्य समाज का ट्रस्ट हॉस्पिटल है, पूरा ऑल कम्युनिटी को ट्रीटमेंट करते था। अभी तेलंगाना का गवर्नमेंट का तरफ से भी केसीआर साहब ने भी इधर कोविड का ट्रीटमेंट को डेली 40,000 को कोविड टेस्ट करा रहे था। अभी 10 तो 11 लोगों को अभी टेस्टिंग किया था। ओनली 1 लाख पेशेंट को अभी पॉजिटिव आ गया। ये पॉजिटिव आने के बाद ये 70% तो पब्लिक को, पेशेंट्स को होम आइसोलेशन को लगाते था। वो होम आइसोलेशन में भी पूरा ट्रीटमेंट वो डॉक्टर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनको मोबाइल में वीडियो कॉल करके उनको मेडिसिन भी दे रहा था, मास्क भी दे रहे, सैनिटाइजर भी दे रहे। पूरा
ये पूरा ट्रीटमेंट करा रहा था। ये गांधी हॉस्पिटल एंड सिम्स हॉस्पिटल बोल के हैदराबाद में बड़ा हॉस्पिटल है था, बड़ा 4,000 बेड की वो लोगों के लिए था। ऑल ओवर तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा हॉस्पिटल में भी कोविड पेशेंट को भी अच्छा कर रहा था। अभी एग्रीकल्चर वालों को, अभी माइग्रेंट्स को इधर चावल देना, फ्री में देना, वो एग्रीकल्चर वालों से भी गाड़ी परचेज करना, ये पूरा करे था। आईवीएफ का तेलंगाना का तरफ से भी 5 to 6 लाख लोगों को, गरीब लोग माइग्रेंट्स को, पूरा लोगों को खाना खिलाया था अपना आईवीएफ का तरफ से। अभी कोविड पेशेंट को भी घर घर को जाके ये खाना खिलाऊं था। ये पूरा क्या क्या आइटम चाहिए कोविड पेशेंट को, उनको डॉक्टर साहब को अगर उनको जानना है उससे हमें डॉक्टर ऐसे रास्ता उनसे निवेदन सभी को नमस्कार। आदरणीय अशोक जी हमारे सबके मेडिकल फैकल्टी के एक और हम सबको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके कि आदरणीय हर्षवर्धन जी जब स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के बने थे तो उस टाइम वो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। हमने उनकी पूरे के पूरे सारे मार्गदर्शन के अंदर बहुत कार्य किया। मैं आज इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जिस प्रकार से जब स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली थे तो पोलियो का जिस प्रकार से अभियान चलाया था और पोलियो को भारत से बाहर एकदम दिया, उसी प्रकार से हम इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि कोरोना पर जिस प्रकार से नियंत्रण और जो पूरा का पूरा पूरे विश्व को बताया है कि हम इसके नियंत्रण और किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, मैं आज पूरा विश्व उसको मान रहा हूँ। और मेरे को इसके अंदर भी जरा से नहीं है कि 2022 के अंदर भारत एक स्वस्थ भारत, नया भारत, स्वस्थ भारत होगा आदरणीय हर्षवर्धन जी के मार्गदर्शन के अंदर। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से 14 सितंबर को एक संसद का अधिवेशन चालू हो रहा है और उस अधिवेशन में उस संसद के सत्र के अंदर अपनी एक पैरामेडिकल अलाइड मेडिकल साइंसेज, क्योंकि हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपको उसके बारे के अंदर बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जब सुदृढ़ हो सकता है जबकि हम उसके अंदर इफेक्टिव स्किलफुल पैरामेडिकल सारे के सारे हों, उसकी और भी प्रभाविता बढ़ जाएगी। मैं आपसे केवल इसी बात का निवेदन कर रहा हूँ और हम सब लोगों को आपके ऊपर बहुत गर्व है कि आपने जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे विश्व को दर्शा दिया है कि हम में क्षमता है, हमें डॉक्टर साहब मैं आपको बोलना, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को पीएम मीटिंग में जाना है, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। मैं सुरेंद्र गुप्ता जी हमारे सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट को फोटो फ्रेंड से, डॉक्टर साहब 1 मिनट रुकना बस आप, 1 सेकंड डॉक्टर साहब। सुरेंद्र गुप्ता जी वो थैंक्स काइंडली। मैं सबसे पहले जी का जो हमारे केंद्र में टीम है हमने सम्मान करता हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने व्यस्तम समय में थे उन्होंने आज में निकालकर हमारे को मार्गदर्शन दिया, पूरे विषय को बोलकर अच्छे तरीके से बताया। और आज में इस दिन होने पर सुहागा हो गया, हमारे अध्यक्ष जी का जन्मदिन भी है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सभी आए हुए अतिथियों को पूरे हमारे और पदाधिकारी आए हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ, वो जो मोदी जी ने भी कहा था, सभी ने कहा पहले तो हमारे नारे में जान है तो जहान है, आपके जान है जहान भी है। जान सरकारी है, पूरे मिलकर जहान भी आप लोग हम प्रकार से जान करेंगे, तो जहान के बिना जानकर बहुत धन्यवाद। आगे आपसे थैंक यू वेरी मच।